हाय वेलकम बैक। मैं हूँ सीए दिव्या चौधरी एंड आई एम हियर टू गेट योर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर। हमारा आज का वीडियो होने वाला है ऑन कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स। मैं जिस वर्कशीट में सॉल्व करने वाली हूँ वो वर्कशीट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू शेयर करूँगी, सो यू कैन मेक योर नोट्स देयर। इस वर्कशीट के साथ साथ मैं एक और वर्कशीट शेयर करूँगी विच इज़ होमवर्क फॉर यू, जिसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं और खुद से भी चेक कर सकते हैं। I'll be sharing my screen now, so please take notes wherever you feel necessary. Let's start by understanding two types of transactions that we have in current day. That is cash transaction and credit transaction. Barter अब आजकल के ज़माने में चलता नहीं है। कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है, हम कोई चीज़ खरीदते हैं और सामने कैश पे कर देते हैं। इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमने चीज खरीदी और बोला कि हम पे बाद में करेंगे। सो यू बाय एंड यू पे राइट नाउ, दैट इज कैश ट्रांजैक्शन। यू बाय नाउ एंड पे लेटर, दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। Let's just quickly write this down. Buy now and pay now, and credit transaction is buy now and pay later. So there are two types of transactions. And how do journal entries differ for both of these transactions is what we are going to understand. Let's start with the first one. Purchase goods of rupees 50,000 for cash. What are the two items? Goods and cash. But in place of goods, I identify purchases. Basics of this purchase of goods and purchase of asset has been done in the previous video, and I'll share a link in which you can go through the basic journal entry of purchase of goods. All right. So my two items is purchases and cash. Purchases is an expense, nominal account, and cash is going out of the books. My journal entry will be purchases account debit to cash account. Right? Amount is 50,000. So clearly this is a cash transaction, क्योंकि हमने खरीदे हैं गुड्स और हमने सामने ही सामने कैश पे कर दिया. It's a cash transaction. Moving on to the next one. Purchase goods of rupees 50,000 from Akash for cash. My items here are, you can say purchases is one of the items, Akash and cash. Purchases is nominal account, debit all expenses losses, credit all income gain. Akash is a personal account, debit the receiver, credit the giver, and cash real, debit what comes in and credit what goes out. So purchases is an expense, I've circled the debit. आकाश, आई एम परचेजिंग गुड्स फ्रॉम आकाश, तो आकाश गुड्स का गिवर हुआ तो वो क्रेडिट में चला जाएगा. एंड कैश इज ऑल्सो गोइंग आउट ऑफ द बुक्स. तो मेरे पास एक डेबिट और दो क्रेडिट आ गए हैं. अब इनमें से ही एक जर्नल एंट्री होगी, या तो परचेजेस टू आकाश या फिर परचेजेस टू कैश. इफ आई डू परचेजेस टू आकाश, मैं आकाश को लायबिलिटी बना रही हूं. मैं बोल रही हूं कि इसको पे करना बाकी है, बट क्या एक्चुअली में बाकी है? नो, राइट? हमने ऑलरेडी पे कर दिया है. तो इज दिस अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? ये मेरा कैश ट्रांजैक्शन आ जाएगा. मैंने गुड्स खरीदे अभी और आकाश को पे भी अभी कर दिया. पे करना बाकी नहीं है. Therefore, my correct journal entry would be purchases account debit to cash account 50,000. तो अगर आपके पास तीन items you can find in a transaction, here you were able to find nominal, personal and real. So initially you can always
try to find कि what are the 2 journal entries which is possible. फिर आप logic लगा के you can end up choosing the correct one. Let's move on to the next one. Purchase goods of rupees 50,000 from Akash. I am purchasing goods from Akash. Is cash paid right now कुछ भी mentioned है क्या? नहीं. तो फिर ये कैसा ट्रांजैक्शन हो गया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया. आपने गुड्स खरीदे और पे करना बाकी है. Purchases is my nominal account. Akash is my personal account. Purchases expense है and Akash is the giver of goods. पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि परचेजेस आपका खर्चा है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और आकाश आपकी लायबिलिटी बन जाती है क्योंकि आपको पे करना है किसी को. आप आकाश से गुड्स ले आए हो, कॉन्स्टेंटली आपके हेड में है यार, या तो आकाश को पे कर देते हैं या उसके गुड्स लौटा देते हैं. सो योर जर्नल एंट्री विल बी purchases account to Akash's account 50,000 and 50,000. Therefore, it's a credit journal entry. And lastly, last type of transaction, purchase goods of rupees 50,000. I'm purchasing, बट आगे लिखा हुआ नहीं है कि मैंने कैश पे किए या फिर किससे खरीदे. ना तो किसी का नाम दिया है, ना ही कैश का जिक्र किया है ट्रांजैक्शन में. तो फिर मैं क्या करूंगी? अगर मैं इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन अज्यूम करती हूँ तो मुझे किसी का नाम लिखना पड़ेगा कि मुझे पे करना किसको बाकी है. मतलब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि किसको बाकी है. देयर आर thousands of people who can sell you goods. तो किसी एक का नाम अज्यूम करने से तो बेटर है यहाँ पे आप अज्यूम कर लो कि आपने गुड्स खरीदे और आपने सामने कैश पे कर दिया. सो इफ नथिंग इज गिवन वी अज्यूम गुड्स आर परचेज्ड ऑन कैश. सो माय जर्नल एंट्री विल देन बिकम परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट 50,000. We've done 4 types of journal entries. I'll quickly write them down. Purchased goods for cash, purchased goods from Akash for cash, purchased goods from Akash, and lastly purchased goods. मैंने यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है. वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वेदर इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो जहाँ पे कैश दिया हुआ है वो तो ऑटोमेटिकली कैश ट्रांजैक्शन बन जाते हैं क्योंकि आप उधारी पे तो गुड्स खरीद नहीं रहे हो, आपने गुड्स खरीदे और कैश पे कर दिया. जहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है और कैश नहीं मेंशन है वो मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाता है. एंड लास्टली कुछ भी मेंशन नहीं है तो आई कांट अज्यूम एनी पार्टीज नेम. मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ कि ये कैश ट्रांजैक्शन ही होगा. That is how you identify whether a transaction is a cash transaction or a credit transaction, and journal entries will differ accordingly. अगर आप किसी से गुड्स उधारी पे खरीदते हो तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है कि या तो उसको गुड्स लौटाएं या उसको कैश दे दें. वाइस वर्सा अगर आप किसी को गुड्स उधारी पे बेचते हो तो वो आपका एसेट बन जाता है. आपके गुड्स किसी और के पास पड़े हैं, या तो वो आपको गुड्स देगा या वो आपको पैसे देगा. I hope these transactions are clear. With this, we come to an end to our current video. If you have any doubts, please drop it in the comment section and I'll make sure I answer them. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ 2 डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी. एक डॉक्यूमेंट जो हमने करंट वीडियो में काम में लिया है एंड सेकेंड डॉक्यूमेंट हैज़ होमवर्क क्वेश्चंस which has transactions on sale of goods on cash and credit basis. सॉल्यूशन भी आपको उसी फाइल में मिलेंगे. Thank you so much.
I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.